So today we are going to do the passage which is given on page number 127 of your English book. Can any one of you tell me in the passage questions what we have to do and what are the things which should be considered while solving a passage? Can any one of you tell me? Yes, Ishita. Yes, ma'am. Ma'am, we have to read the passage carefully and answer this question and on the basis of this passage. Okay, so have you ever solved any passage in your previous Yes, classes or yes, anything? ma'am. Okay, so Yes, ma'am. what was the criteria? How you do the passage questions in your exam? Mm, Ma'am, firstly, I read the passage carefully, then I read first question and then try to find out the answer of it. Okay, okay, very good. Listen, the thing which Ishita has told is absolutely correct, but there are many, I mean, almost students, what they do is, whenever they see any passage questions, they think in their mind that to read a passage is just a waste of time. We will not able to understand, and it is no use of reading a passage. So directly they just jump to the question which is given after the passage. But this is not the correct way. First of all, as the question suggests that read the passage carefully and answer the questions that follow, it means first of all, whether you understand the meaning or not, at least you have to read the passage once. एक बार तो आपको पैसेज रीड करना ही है, अदरवाइज okay, you are also included in that type of student that you directly jump to the question and then you try to find out the answers. बेटा उसमें होता क्या है कि हमारा ज़्यादा टाइम हमें हमें भले ऐसा लगता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर ढूंढ के करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, बट दिस इज रॉन्ग. इससे उल्टा होता है. इससे होता क्या है कि आप ना क्वेश्चन का आंसर और ज़्यादा बहुत डिले हो जाता है आंसर ढूंढने में, क्योंकि जब हम एक बार एटलीस्ट पैसेज रीड कर लेते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज सेट हो जाती है कि हमने ये लाइन किस जगह पे पढ़ी थी क्वेश्चन से रिलेटेड. तो जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो ऑब्वियसली आपको पैसेज में ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप एक बार एटलीस्ट उसको रीड करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इस चीज की बात इस लाइन में की गई थी, इसका मतलब इसका आंसर इस जगह पर हमें मिलेगा. So again, I am telling you all people that please read the passage at least once, so that भले ही आपको समझ में आए. I know कि एक बार पैसेज पढ़ोगे तो एक बार में समझ में बहुत कम आता है, क्योंकि वो पैसेज कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा. लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैम ने बोला था कि बस रीड करना एक बार तो कुछ भी आप आंख बंद करके हो कैसे भी रीड कर रहे हो, आंख बंद करके रीड कर रहे हो मतलब क्या लिखा है कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बस उसको रीड कर रहे हो एक फॉर्मेलिटी के लिए. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग. एटलीस्ट एक बार उसको इस तरीके से पढ़ो कि आपको वो चीज भले बहुत मुश्किल लग रही हो लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के उसको समझने की कोशिश करो एक बार, तो वो इजी रहेगा आपके लिए, पैसेज इजी हो जाएगा. अंडरस्टूड? So we are going to start the passage. One thing is there, आपके एग्जाम में अभी पैसेज आएगा, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम पैसेज को किस तरीके से करते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है पैसेज करने का, क्योंकि 10 मार्क्स के पैसेज आते हैं एग्जाम में. So read it very carefully and try to follow the things which I am going to tell you over here. Who is going to read the passage for me? पैसेज कौन पढ़ेगा? Anyone else? Okay, Neha will read. Yes, ma'am. Yes, read the passage. Man and environment are closely intertwined with each other. To maintain a balance or equilibrium in nature, we come across mainly two types of environment.
One, it is the natural environment of the air, water, solid waste, noise, radiation, soil, Radiation, radiation, soil, timber, timber. wildlife, living space, etc. The second one is the man-made environment that deals with work, environment, housing, technology, aesthetics, transportation, Aesthetics. transportation, utilities, settlement, urban, urbanization, and so on. No, 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 This stop in नेहा, the stop नेहा. बेटा इतने दिन से आप लोग कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? यू हैव फॉरगॉटन टू, मतलब आपकी रीडिंग स्किल्स डे बाय डे पुअर होती जा रही है। आप है ना, भले स्कूल नहीं लग रहा हो बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ घर पे रीडिंग किया करो, अदरवाइज इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू ऑल टू इन द फर्दर क्लासेस टू कंटिन्यू विद द रीडिंग और द लैंग्वेज पार्ट। ओके, सो आफ्टर दिस लाइन अर्बनाइजेशन के बाद से रीड स्वाति दीज एनवायरमेंटल। These environmental components are considered as the resources and are mostly exploited and utilized by the man to fulfill their basic physical needs. Human beings establish emotional, intellectual, or physical relationships with them. ओके ओके, ऑलराइट। सी, कुछ थोड़ा बहुत समझ आया पैसेज पढ़ के? हैव यू गॉट द थिंग कि पैसेज किस चीज के बारे में है, क्या बात कर रहा है, क्या बात कही गई है पैसेज में? कुछ भी थोड़ा बहुत हैव यू अंडरस्टूड एनीथिंग इन द पैसेज? एनीवन वांट टू से एनीथिंग? ओके, Ishita will say. Yes, Ishita. Yes, ma'am. Ma'am, the passage is about environment. How many types of environment are there? उन environment में क्या क्या components आते हैं? Man environment को कैसे use कर रहा है? This Okay. kind of things are tell in this passage. All right, very good. Basically, this passage talks about the two things, mainly man and environment. Okay, and here the components of environment. What are the natural components of the environment are there, and what are the things the environment deal with, and secondly, what are the main environment things we deal with. तो जो दो environment है, एक तो मेन मेड एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट, उन दोनों का कंपैरिजन किया है और हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स है वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एनवायरनमेंट को यूज कर रहा है, उसको स्पॉइल कर रहा है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डे बाय डे एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं, और किस तरीके से मैन का और एनवायरनमेंट का रिलेशन है, वो सारी चीजें हमको इस पैसेज में बताई हैं। एटलीस्ट हमने अगर एक बार पैसेज पढ़ लिया तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग, वी विल शिफ्ट टू द क्वेश्चंस। अब हम पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द रिलेशन बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैन का और एनवायरनमेंट का रिलेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाट इज द रीजन व्हाई द रिलेशन ऑफ मैन एंड द एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट? Okay, Swati will tell. Ma'am, I tell only the main words or No, full tell me the answer. answer. Tell me the answer. Okay, ma'am. Man and environment are closely intertwined with each other to maintain a balance or equilibrium in nature. Okay. देखो, एक चीज और मुझे आप लोगों को बतानी है कि होता क्या है कि हमें क्वेश्चंस जो दिए होते हैं, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जंप कर देते हैं पैसेज के ऊपर और एज इट इज लाइन पूरी कॉपी कर देते हैं आंसर में।
मतलब कि जो पैसेज में ऊपर लाइन लिखी गई है उसमें हम ना 1% का भी चेंज नहीं करते और एज इट इज उसको कॉपी कर देते हैं नीचे। बट बेटा दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन जो पूछना चाहता है, कभी कभी होता क्या है कि पैसेज में वो चीज घुमा कर दी गई होती है, घुमा कर दी गई होती है, इसलिए हम समझ में नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते कि जो लाइन है वो एग्जैक्टली आंसर से फिट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हुआ है। ओके, मतलब वो क्यों पूछ रहा है। तो क्यों का आंसर हम जनरली बिकॉज से या फिर एज से, इन दो वर्ड से देते हैं। ठीक है, तो हम जो इसका आंसर बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, ये तो हमें पता है कि फर्स्ट लाइन में ही इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि द रिलेशन बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आंसर की शुरुआत क्वेश्चन से ही होती है मोस्ट प्रोबेबली। तो हमारा आंसर कैसे शुरू होगा? द रिलेशन बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट। या तो लिखो बिकॉज या लिखो एज, दोनों चीज करेक्ट है। एज, अब यहाँ आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हमने मैन एंड एनवायरमेंट यहाँ यूज कर लिया, तो अब हम बार बार मैन एंड एनवायरमेंट तो बोलेंगे नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? दे आर क्लोजली इंटरवाइंड विथ ईच अदर, या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एंड टू मेंटेन अ बैलेंस एंड आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस और इक्विलिब्रियम इन नेचर। ठीक है, तो पूरा आंसर क्या बनेगा आपका? रिलेशन बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट एज, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, दे आर इंटर रिलेटेड एंड आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस और इक्विलिब्रियम इन नेचर। यस इशिता? Ma'am, means we can use both the passage words also and our own words also to make the answer. Yeah, exactly this thing which you have to do while writing the answers of the Yes, passage. yes, Otherwise ma'am. लगता क्या है पता है, हमेशा होता है क्या कि ठीक है अभी तो आपको नंबर मिल जाएंगे, आप पैसेज लिख रहे हो और Ma'am, but वेट यस इशिता? ma'am, we can use our own words most, मतलब means ज्यादा अपने words use कर सकते हैं because आंसर प्रॉपर नहीं बनता है फिर। एग्जैक्टली वॉट यू हैव टू डू इज कि आप आपके जैसे आपको जो लग रहा है कि पैसेज में बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, उस डिफिकल्ट वर्ड को लीव कर दो और उसकी जगह पे कौन सा हम सिंपल वर्ड पुट कर सकते हैं। फर्स्टली गो फॉर दैट थिंग। ठीक है, सेकेंडली कि आप जब आंसर बनाओगे तो एक चीज ध्यान रखना कि मोस्ट प्रोबेबली द क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चन से ही आंसर की शुरुआत हम करके जो हमारा जो ऊपर जहाँ हमको आंसर मिल रहा है उसको हम कितना शॉर्ट कर सकते हैं, उतना शॉर्ट करके अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। दिस टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट while you are solving the passages. Okay Ishita, got it? Yes, ma'am. All right, now see, this is the first question, this was the first question, got the answer? Again I am repeating it. Relation between men and environment is important, ठीक है, because या फिर as they are related to each other या फिर they are intertwined to each other and are important to maintain a balance और equilibrium in nature। इसीलिए हम कहेंगे कि men का और environment का relation जो है वो important है। Okay, now see the second question. The second question is how many types of environment do we come across? कितनी टाइप्स की environment हमें दिखाई देती है? Okay, स्वाति? There are two types of environment. One is the natural environment of the air, water, solid waste, noise, radiation, soil, timber, No, wildlife. listen स्वाति, देखो Yes. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट बताना है। वी डू नॉट नीड टू इलाबोरेट द सब टाइप्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो जितना उसने पूछा है हम उतना ही आंसर देंगे। ओके,
So Okay, ma'am. tell me the answer again. You write the names also? Yeah, listen, start the answer from the question. There are two types of environment. One is the natural environment and the other is man-made environment. Okay. See, your answer is absolutely correct, but still you have left the main word which is given here, we come across. क्योंकि मेन पूछा उसने ये था कि हमें कौन कौन सी एनवायरमेंट, जरूरी नहीं है कि ये दो ही एनवायरमेंट होती है, पर हमें कौन सी दो एनवायरमेंट दिखती है हम वहां से लिखेंगे. तो वी विल राइट इट एज वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स. कौन कौन सी? फिर हम वो कॉलन लगाएंगे जो कल हमने कॉलन पढ़े थे. उसके बाद हम लिखेंगे नेचुरल एनवायरमेंट and man-made environment. Yes, Ishita, Yes, ma'am. you want to ask anything? No, ma'am. Okay. All right, समझ में आए दो questions. अब third question है आपका, what is a natural environment? Who will answer? Rohit, you have joined very late, but still I'm telling you, we are reading the passage from the your English book, page number 127. Not the English grammar book. We are reading the English main course book. और इसमें पेज नंबर 127 पे जो पैसेज दे रखा है हम वो पढ़ रहे हैं. ओके. इशिता और स्वाति के अलावा कोई और आंसर देना चाहता है? व्हाट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट? लब्धि, Labdi, you want to answer? Neha, Rohit, all right. Swati, give the answer. मैम Hmm. यहाँ पे जो पैसेज है ना उसमें मतलब है ना सिर्फ उसे वही कर रखा है कि क्या क्या होते हैं. हाँ, तो बेटा जहाँ पे कोई इलेबोरेशन वाली चीज होती है ना, मतलब जहाँ पर्टिकुलर नेम्स दे रखे हैं वहाँ हमको हमारी लैंग्वेज यूज करने की नीड नहीं है. एग्जैक्टली वी नीड टू राइट द सेम थिंग. ओके, जो बोला है वो का वो ही लिखना है वहां पर. जो अगर पर्टिकुलरली कोई जैसे फर्स्ट वाला जो आंसर था ऊपर हम चेंजेस कर सकते थे हमारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में जो इलेबोरेशन बोला है वहां तो ऑलरेडी इन लोगों ने जो नाम बताया हमको वही लिखने पड़ेंगे. वी कैन नॉट write it in our own language. So you have to write the same thing which is given in the passage in this answer. Okay, ma'am. A natural environment consists Hmm. air, water, solid waste, noise, radiation, soil, timber, wildlife, living space, etc. Okay, this is the correct answer. You can write it as it is. Okay. Now, next question is, what are the components of man-made environment? Yes, Ishita. Yes, ma'am. The components of man-made environment are Hmm. housing, technology, aesthetics, transportation, utilities, settlements, urbanization, and so on. Okay. It's correct. Okay. And the last question is, uh, what kind of relationship do human beings establish with the environment? This is very simple. Yes, Swati. Human beings establish emotional, intellectual, or physical relationships with environment. Okay, very good. है ना. अब वहाँ पीछे विद देम लिखा है तो हम उसको विद देम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको
क्योंकि जो आंसर रीड करेगा उसको ही समझ में नहीं आएगा कि देम मतलब क्या बोला है यहाँ पर। तो इतना हमें अपने अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा कि यहाँ ऑलरेडी एनवायरनमेंट की बात हो रही थी, तो हम यहाँ लास्ट में विथ एनवायरनमेंट लिखेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैसेज। नाउ एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग इन दिस पैसेज? समझ में आया सबको किस तरीके से ये पैसेज हमने किया है और किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं पैसेजेस? Okay, Swati, want to ask anything? Yes, Swati. Ma'am, pronunciation of intertwined is right? It's intertwined. Intertwined. Okay. Okay. इसका मतलब Okay, क्या ma'am. होता है? जैसे कि जब कोई चीज एकदम क्लोजली किसी से रिलेटेड होती है, मतलब बोलते हैं कि अपन उसमें द इंक्लूजन ऑफ द थिंग इन द सेम थिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरवाइन। मतलब जिन दो चीजों को हम अलग नहीं कर सकते, दैट थिंग इज नोन एज इंटरवाइंड। मतलब कि मैन और एनवायरनमेंट को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मैन एंड एनवायरनमेंट बोथ आर इंटरवाइंड विद ईच अदर। यस इशिता। Ma'am, what is the meaning of equilibrium? नो, इट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, Okay, इक्विलिब्रियम okay. क्या होता है? इक्विलिब्रियम जैसे यहाँ इक्वल वर्ड से बना है, मतलब कि जब भी आप किसी चीज की बहुत सारी दो से तीन, दो मतलब एक, दो या दो से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हो और उनमें कंपैरिजन करते हो, तो जहाँ इक्वलिटी हो जाती है, मतलब कि एक बैलेंस बन जाता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ मैन और एनवायरमेंट का और ये जो बैलेंस होता है, तो नेचर में इक्विलिब्रियम की बात हो रही है कि जितनी इंपॉर्टेंस मेन की है उतनी इंपॉर्टेंस एनवायरनमेंट की है। तो दोनों अगर इक्वल है तो उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। ओके इशिता, गॉट इट? Yes, ma'am. Thank you. ओके, यस, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? एनीथिंग मोर अबाउट द पैसेजेस? ओके, सो मैम ने आपको जो कुछ लेटर और आर्टिकल्स करवाए हैं, तो हम कल आर्टिकल्स और लेटर्स का मतलब कोई सी भी एक चीज मतलब राइटिंग सेक्शन में हम उसका रिवीजन करेंगे कल से। ठीक है, तो अब हमारी इंग्लिश ग्रामर का हमने ऑलमोस्ट कर लिया है कवर। इसके आगे के लेसन इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट मच इम्पोर्टेंट। जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे वो हमने कर लिए हैं इंग्लिश ग्रामर के। ओके, एंड अब इंग्लिश में आपकी एनुअल एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली मार्च में हो सकती है, तो हम आपकी रिवीजन पार्ट जो है वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके 5, 6, 7, 8 लेसन आएंगे इंग्लिश बुक में से, एंड बुक एक्टिविटी आएगी, राइटिंग सेक्शन आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो ये सब चीज़ें आएंगी आपकी एग्ज़ाम में, और अब रिवीजन आप स्टार्ट कर दो क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की डेट्स कभी भी आ जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। सो प्लीज़ गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर एनुअल एग्ज़ाम, एंड मोस्ट प्रोबेबली योर एनुअल एग्ज़ाम चांसेस हैं दैट इट विल बी ऑफलाइन। ओके, तो इस भरोसे में मत रहना आप कि हमें कुछ भी लर्न नहीं करना है या कुछ भी रीड नहीं करना है। ये स्वाति। मैम, जो इंग्लिश ग्रामर में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे आप यस, मैम वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब है ना, सब एक जैसे ही दिखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ना? यस मैम। लिसन बेटा। मैम जैसे फेजेस और क्लॉजेस के देते हैं ना, वो वाले। ओके, सी, इंग्लिश ग्रामर में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर का कुछ भी नहीं दिया है। वी हैव ओनली सिलेक्टेड द बुक एक्टिविटी ऑफ योर मेन कोर्स बुक। ठीक है, और मेन कोर्स बुक में कुछ सिर्फ एक या दो, हर चैप्टर की एक या दो ही एक्टिविटीज हमने मैम ने आपको करवाई हैं, तो हम उसी में से हम करेंगे और हम उसका वापस रिवीजन करेंगे, है ना। जो नेक्स्ट वीक आएगा अपनी जो क्लास लगेगी उसमें अपन सबसे पहले बुक एक्टिविटी का रिवीजन करेंगे, क्योंकि बुक एक्टिविटी विल कवर अ लॉट ऑफ मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम्स दिस टाइम। I think up to 50 marks your book activity are going to there.
to come. Okay, yes Ishita. मैम शाइस्ता मैम ने ओनली वर्कशीट से करवाई, उसके अलावा अलग से बुक एक्टिविटीज नहीं करवाई है। नहीं बेटा, आपकी बुक एक्टिविटी मतलब आपकी वर्कशीट ही है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है बुक एक्टिविटी में, क्योंकि वी वर नॉट हैविंग दिस मच कम्युनिकेशन, मतलब इतना अपना अपन लोगों का इतना कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाया, और क्योंकि काफ़ी लेंदी एक्सरसाइजेज एंड सारी चीज़ें थी, तो उसको कवर अप करना बहुत प्रॉब्लमेटिक था। सो वी हैव कवर्ड ओनली द मेन वर्कशीट्स, और उसी के बेस पे आपको मतलब उन्हीं की प्रिपरेशन करनी है। बस ये है कि जितना आपने किया है उसको थरोली प्रिपेयर करना, जितनी वर्कशीट्स की है, जितनी बुक एक्सरसाइज की है उसको थरोली करना, राइटिंग सेक्शन को भी थरोली करना जितना भी आपने किया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आ ही गया है कि किस तरीके से करना है। तो दिस थिंग यू हैव टू टेक इनटू माइंड। और कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं पैसेज के, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको फेयर कॉपी में लिखने हैं। आंसर्स मैं आपको गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दूंगी। ओके, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग नाउ? थरोली बेटा, थरोली मतलब होता है बहुत अच्छे से, है ना, कि थॉरोली मतलब आप थॉरोली बोलते हो उसको, तो उसको मतलब कि मैं आपको बोल रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स आपको और जो भी बुक एक्टिविटी है उसको बहुत अच्छे से करना है, जितनी भी दी हुई है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड है ना, हमने आपको ज़्यादा लेंदी तो दी नहीं है, बहुत लिमिटेड है, पर जितनी भी है उनको बहुत अच्छे से समझ के आपको, भले 2 बार समझ में नहीं आता है, 3 बार समझ में नहीं आता है, आप जितनी बार आपको नहीं आ रहा है समझ में, यू विल आस्क टू मी, है ना। आप ये नहीं सोचोगे कि मैम क्या बोलेंगे कि मैंने 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। आई विल नॉट टेल यू दैट कि नहीं मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट इवन आई विल फील बेटर इफ यू विल आस्क मी अगेन एंड अगेन द थिंग्स विच यू विल नॉट कम टू अंडरस्टैंड। ओके, so that is all about the things, and आपको ये क्वेश्चन आंसर्स फेयर कॉपी में लिखने हैं। मैं आपको गूगल क्लासरूम पे पीडीएफ सेंड कर दूंगी, जो आज हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया है उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको फेयर कॉपी में राइट डाउन करना है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? Okay, so that's all for today. I'm ending the class now. Have a nice day.